Okay, good morning all of you. So first of all, we are going to start with the PK testing. That means I'm going to test your previous knowledge, that what you had understand from our previous lecture, and then we will continue with our next one. Okay. So first of all, let me ask you a few questions. My first question is, which statement do we use to change the color of my screen or the graphics that I am going to draw on my screen? So tell me the name of that command. Good, very good. Yes, all the answers are correct till now. No, it's not paint command. One wrong answer. Yes, all others are correct. It's color command. We are going to use color command for changing the color of my screen or the text or graphics on my screen. Right. Okay. Then my next question, which command should I use to draw a horizontal, diagonal or vertical line? Very good. Yes, that's correct. Good. Yes, we are going to use line command for this purpose. Okay. So using line command, you can draw either horizontal line, vertical line or diagonal lines. Javan, pay attention beta. Okay. So then my next question is the question that we had discussed in the previous lecture. That is, which screen mode is known as high resolution? One screen which we are using as a high resolution screen. Which one is that? No. With the high resolution. Yes, very good. Now your answers are correct. Yeah. It's screen number 8. Why screen number 8? Because the resolution of that screen is 640 into 200. Right? That's why it is known as high resolution screen. Okay. Then my next question is, which screen is by default? Which is the by default screen mode in the QBasic? Very good. Very good. Yes, it is screen number 0. Without even switching to any screen, this is the by default in QBasic, right? Okay, then my last question, what is pixel? Just define in one word or one line, what is pixel? Yes, be quick, beta. What is pixel? Very nice, Akul. Good, Bani, very good. Yes. Yeah, very good. Absolutely correct answer. A single dot on our screen is known as pixel. Very good. Okay, so in today's lecture, we are going to continue with the QBasic in the color command. Okay, so today we are going to discuss the color command, and the next one is line command. So first of all, tell me the queries about the color command. As I had shared the tutorial already, so now you have to tell me your doubts regarding the color command. Okay. Yes, Akul, you may ask better. Okay. So first we will discuss the color command, all the doubts in the color command, then regarding the line command. Okay. Yes, you need to choose the color using their color value, not the color names. Okay. Foreground color and background color. Okay. Yes. You need to see the color codes before you specify them. I had already shared, Javant. I had already shared a video through which you can see how you can download the QBasic. Right? Okay, foreground color refers to, and what is the background color? Foreground color is basically the color which is appearing in the front. Okay, and the background is which is on the back side. Like the wallpaper we are having, that is our background. And exactly in the same way we are having background colors. The foreground color is the color which is appearing in the front. Let me share my screen and show you.
Okay, so here you can see in this, which is the background color of my slide? This one, this pattern, right? You can see this blue and white mixture of both. There is a pattern, and this is my background color, blue and white. Very good. And what is the foreground color of my text? What is the color of my text? This text in this color statement, white. Very good. So blue is my background color and white is my foreground color. This is the difference between both. Blue is the background. Why background? Because blue is appearing at the back. And why white is front, foreground? Because the color which is appearing on the front side is my white color. That's why it's a foreground color. Okay? Very good. So now you had understood the difference between background and foreground color, right? So in color statement, we are having this two syntax, color F and color F comma B. Now what is this F? Who is going to tell me what is F? Foreground. F means foreground color. The color that you want your text or your graphics, right? The color for your text or for your graphic will be your color, foreground color. And then B. What does that mean of B? Background. Very good. Okay. So background means the color that you want that will display on the back side, right? That will be your color number B. Color code B. Then you can specify the background color also, right? Okay, you may ask. Okay. Foreground color is basically the color which is appearing for your text or for your graphics, and the background color which is displaying on the back side for the screen. Okay. Yes, we have changed the color in the video also. We will discuss that examples too. Yes, here you can see your color codes, right? तो अब हम क्या करेंगे, क्यू बेसिक में वी आर गोना यूज दिस कलर कोड, और सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड जो है स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर वो चेंज करेंगे. ठीक है. सो हु इज गोइंग टू टेल मी विच स्क्रीन शुड आई यूज फॉर चेंजिंग द कलर? सबसे बेस्ट स्क्रीन हमारे लिए कौन सी है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? स्क्रीन 8 with a high resolution. Very good, Akul. Okay, so let me show you my QBasic screen. Can you see this QBasic screen? Is it visible to you? Okay, good. Then let me write the commands. You are going to tell me the command side by side, and then I'm going to type it. Okay, so tell me first of all, which screen mode? 8. You already told me, right? So let me start with this screen 8. That means I had switched to screen number 8. Bani, this is the answer of your query, beta. How we can switch the screen modes? Just by simply writing screen and the number, mode number, जिस जो भी screen में आपको switch करना है. जैसे screen 8 use करनी है तो 8 number लिख दो, 7 use करनी है तो screen 7 लिख दो. This is how you can switch between the screens. Okay? Yeah. After this, मैंने use करना है color number white. I want to use the white color for my background. Okay, and then front के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा, because background लेने के लिए F, B होता है, right? तो front foot पे मुझे चाहिए red color. Okay, red for my graphics and white for my background. तो बताइए क्या statement होगी इसकी? Very good, अनन्या. सबसे पहले हम लिखेंगे color. अब मुझे F, B, that means सबसे पहले foreground color चाहिए मुझे red. तो red के लिए color कौन सा है? F, B. तो रेड के लिए 4. वेरी गुड. 4, व्हाइट. बैकग्राउंड मुझे चाहिए व्हाइट, तो व्हाइट का कलर कोड क्या है? वेरी नाइस, इट्स 15. ठीक है, इतना करने से हमारे स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा. लेट्स सी. आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस एंड यू कैन सी, इतना करने से ही हमारा जो स्क्रीन का कलर, जो पहले ब्लैक कलर में आती थी हमारी आउटपुट स्क्रीन, नाउ इट इज अपीयरिंग इन व्हाइट कलर, राइट? एंड विद दैट यू कैन सी दिस टेक्स्ट आल्सो, इट इज इन रेड कलर, बिकॉज मैंने रेड कलर अपना फोरग्राउंड कलर चूज किया. दैट इज क्लियर नाउ?
राइट? ओके, देन इसको क्लोज कर लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए अपना जो हमने यूज किया है। हमने फ्रंट फुट के लिए यूज किया रेड कलर, राइट? तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि वाकई हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है ऑल इन कैपिटल्स, जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है क्या वो रेड कलर में आ रहा है? ठीक है, सो लेट्स चेक। foreground color, I'm using a shortcut FC, foreground color is red. Okay, so let's see, अब हमारा foreground color red आता है और background color white आ रहा है। Again I had executed this and you can see the output screen. It is written foreground color is red. It is the exact message that I had printed in my QBasic and it is appearing in red color this time. Why so? Because हमने foreground के लिए red color choose किया था। Okay, अब मैं चाहती हूँ जो मेरा red color आ रहा है वो red ना आए, बल्कि उसकी जगह let's try some other color like screen number 6. Okay, because that is the by default. Yeah, now it is appearing. You can see now brown color is appearing, right? Okay, we will discuss that also beta. Had you understand the concept of front color and back color? Okay, अब हम switch करके देखते हैं दोनों colors को, ठीक है? जो मेरा background color है उसको front बना के देखते हैं और जो front color है उसको हम background में transfer करके देखते हैं। Okay, तो 6,15 था, अब मैंने कर दिया 15,6, ठीक है? Let's see दोनों color आपस में switch होते हैं या नहीं होते? Yes, it appears. See, अब मेरा जो ब्राउन कलर है वो बैकग्राउंड में आ गया और जो फ्रंट कलर है वो चेंज होके व्हाइट बन गया और जो टेक्स्ट का कलर फ्रंट में आता है वो व्हाइट हो गया, राइट? वेरी गुड. So now you had understand the concept of background color and the foreground color. Okay. Yes, it's looking nice. Okay. Okay. Fine, Ananya. We can use screen 13 also, but color codes are different in that. Okay, so maybe it appears in a different colors this time because yeah, as you can see the color code that we are using earlier is for the screen 8, but this time also background color is brown and foreground color is white, but the resolution of my screen and other things gets changed, right? This time the background is appearing just for the text, not for the whole screen. Why so? Because we had switched our screen mode. Earlier I'm using 8, this time I'm using 13. And even if you are not going to use any screen now, let's see what will happen. मैंने screen कोई भी use नहीं की. That means मेरी by default जो screen थी 0 वही आएगी. ठीक है? अब इसको run करके देखते हैं. अब भी ये whole screen पे नहीं आएगा, बल्कि whole screen पे आने की बजाय ये कैसे आया है? सिर्फ मेरे text का background आया है. तो same command में मैंने कुछ change नहीं किया. सिर्फ मैंने changes कहाँ किए? अपने screen mode में. तो स्क्रीन मोड चेंज करने से हमारी स्क्रीन की पूरी रेजोल्यूशन और कलर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है? यस, यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स टू डिजाइन योर आउटपुट स्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, वेरियस कलर्स आर अवेलेबल ऑलरेडी. ओके, yes, it is appearing small than the screen number 8. That's why screen 8 is known as high resolution, because उसका screen size भी ज़्यादा है and उसके graphics भी ज़्यादा better है. अब हम यूज़ करेंगे line statement. उससे आपको clear हो जाएगा क्योंकि screen 8 ही हर बार हम क्यों यूज़ कर रहे हैं या screen 7 ही क्यों यूज़ कर रहे हैं. By default जो screen है हमारी screen number 0, हम उसको यूज़ करके क्यों नहीं कुछ draw कर रहे हैं, ठीक है? So let's erase this program and then we will use the line command. Oh, that's very good. Okay, तो सबसे पहले लाइन कमांड यूज करने से पहले मुझे आपको एक चीज विजिबल करवा रही हूँ मैं. Are you able to see my screen? जहां मैंने एक ग्राफ पेपर पे एक स्क्रीन डिजाइन की हुई है. Yes. Okay. So in this ग्राफ पेपर मैंने एक स्क्रीन डिजाइन की और मैंने उसके सारे कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस के भी और y एक्सिस के भी दोनों स्पेसिफाई कर दिए इसमें.
अब आप देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी, दिस इज माय एक्स एक्सिस, राइट, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन इज माय वाई एक्सिस, राइट। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं ऑब्वियसली, एक्स के भी कोऑर्डिनेट और वाई के भी कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट 0 0 है। जैसे जैसे डाउनवर्ड्स आते जाएंगे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट की ओर बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वैसे वैसे मेरे एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी, इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी इसमें, ठीक है, आपने अब मुझे बताने आंसर्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हमें उसमें 2 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का, एक एंडिंग पॉइंट का, राइट। तो हम चूज करते हैं क्लाइंब, मैंने अब ये लाइन ड्रॉ करनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है। पहले आप दोगे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, फिर आपने वाई एक्सिस के देने। तो पहले वाले में स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दोनों दोनों एक्स और वाई के, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। अच्छा बताइए एक्स की वैल्यू कितनी है, ऊपर जाके देखते हैं, 50 यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे भी कितनी आएगी, 50 ही आएगी, वेरी गुड। ब्रैकेट में हम लिखते हैं पहले x की वैल्यू जो कि 50 है, अब लिखेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए वर्टिकली देखना है, y की वैल्यू कितनी है, 50 अगेन, वेरी गुड। सो यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स दोनों हो गए 50 50, राइट। अब हम इसके एंडिंग कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। अब बताइए एंडिंग कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू कितनी है, गुड, x की वैल्यू हमारी है 500, वेरी नाइस। ब्रैकेट में 500 कॉमा, अब y की वैल्यू कितनी है, 50, वेरी नाइस। सो y की वैल्यू आ गई 50। अब हम ये ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज करके लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं कि सेम कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लेके ड्रॉ कर रही हूँ एक लाइन, तो क्या वो मेरी लाइन एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी, हॉरिजॉन्टल ही बनेगी, ठीक है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकली इन द क्यू बेसिक। यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं लाइन ब्रैकेट में 50 कॉमा 50 जो मेरे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स थे, हाइफन यहाँ से लेके कहाँ तक ड्रॉ करनी है हमने, 500 कॉमा 50, और मुझे ये लाइन चाहिए, सॉरी मुझे ये लाइन चाहिए वाइट कलर में, तो यहाँ पे मैं करूंगी कॉमा 15, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। स्टार्ट किए, कोई लाइन अपीयर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, और लाइन अपीयर होने की बजाय यहाँ पे एक एरर आ गया, इल्लीगल फंक्शन। एनीबडी कैन टेल मी व्हाई दिस एरर इज कमिंग, जबकि मेरी लाइन में, मेरी कमांड में कोई मिस्टेक नहीं है, कलर कोड भी सही है, लाइन कमांड भी सही है, कोऑर्डिनेट्स भी सारे सही है, सब कुछ मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया, अभी भी वेरी गुड अनवे, वेरी गुड। दिस इज बिकॉज ऑफ स्क्रीन मोड, गुड अवनी, बिकॉज मैंने स्क्रीन मोड स्पेसिफाई नहीं किया और बाय डिफॉल्ट मेरा स्क्रीन जो आ रहा है 0 आ रहा है, और 0 स्क्रीन मैंने बताया था ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमें कौन सा स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, हाई रेजोल्यूशन वाला, तो वो है मेरा स्क्रीन नंबर, कौन सी स्क्रीन है, 8, वेरी गुड। अब इसको रन करके देखते हैं। एज यू कैन सी एग्जैक्टली जैसे मैंने ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करी थी वैसी ही लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी आउटपुट स्क्रीन पे अवेलेबल हो गई है। स्क्रीन नंबर इज नॉट इन द सिंटैक्स ऑफ द लाइन, स्क्रीन नंबर लाइन के सिंटेक्स में नहीं होता बेटा, लाइन का जो सिंटेक्स है उसमें सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स और कलर स्पेसिफाई करने होते हैं, एंड जो स्क्रीन मोड है वो तो हमारी अपनी चॉइस है ना किस स्क्रीन पे हम अपने ग्राफिक्स ड्रॉ करें, बट 0 स्क्रीन मोड उसको सपोर्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई हम स्क्रीन 7 और स्क्रीन 8 ही यूज करते हैं। वेरी गुड, ऑल योर डाउट्स गॉट क्लियर नाउ, वेरी वेरी गुड बेटा। ओके ओके, अब आपने मुझे बताना है, अब ये मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। दिस टाइम आई वांट टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी मेरी कैसी हो, यहाँ से शुरू हो रही है इस पॉइंट से और यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस लाइन के लिए मेरे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स की वैल्यू, सबसे पहले बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की हॉरिजॉन्टल से देखनी है आपने, वेरी गुड। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ रही है 300, वेरी नाइस बेटा, 300 कॉमा, अब मेरी वाई की वैल्यू क्या आएगी,
देखिए वर्टिकली y की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 50, वेरी नाइस। तो ये होगी मेरी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, राइट। देन यू हैव टू टेल मी द एंडिंग पॉइंट्स। एंड पॉइंट पे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? एक्स एक्सिस में क्या है? x की वैल्यू 300 है, वेरी गुड। और y की क्या है? 150, 150, ठीक है। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी हो तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। चलिए हम अपने क्यू बेसिक में भी अब ये चेंजेस करके देखते हैं। इसको साइड में रख के साथ साथ में देख देख के करते हैं, ठीक है। चलिए 50 को मैंने इरेज कर दिया, मैंने लेने थे 300 टू 50, है ना। तो यहाँ 300 कर दिया, 50 पहले से लिखा हुआ, 2 हाइफन डाल के 2। अब एंडिंग पॉइंट्स क्या थे? 300 और 150। तो यहाँ पे भी चेंजेस कर लेते हैं, 300 300 300 और यहाँ पे हमने करना है 150। क्लियर है? दोनों मैंने सेम सेम लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। जो जो आपने कहे वही वही कोऑर्डिनेट्स मैंने यूज किए। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से वो सेम वर्टिकल लाइन वैसी ड्रॉ होती है या नहीं होती है? एग्जैक्टली सेम लाइन आई है जैसे हमने अपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ की थी, राइट। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स वैसे ही रहते हैं जब जैसे हमने अपने ड्रॉ किए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्क्रीन पे ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफिक ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने डायरेक्टली नहीं लिख दी कमांड यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज फिर तो हमें समझ ही नहीं आएगा स्क्रीन में कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। हमने सबसे पहले उसको रफली ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, कि देखना है कौन से कोऑर्डिनेट से लेके शुरू करना है और कौन से कोऑर्डिनेट पे हमें फिनिश करना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर हमने उसको क्यूब बेसिक में उसकी वही कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। हाँ जी, तो फिर हम अगर हमने दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, हमने दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स लिख देंगे। यहाँ पे हम अपनी हॉरिजॉन्टल वाले भी लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल में हमने कहाँ से शुरू किए थे? 50-50 से, राइट। तो 50,50 से हमने शुरू किया था और कहाँ तक गई थी हमारी लाइन एंड में? 500 और 50 पे, वेरी गुड। तो 500,50 पे गई थी हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो पहले ड्रॉ करी थी। अब देखते हैं दोनों लाइंस ड्रॉ होंगी या सिंगल लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। सी, दोनों ही लाइंस ड्रॉ हो गई, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई है, मेरी वर्टिकल लाइन भी आ गई है। तो जितनी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिखोगे उतनी ही मल्टीपल ग्राफिक्स आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती जाएंगे, राइट। बेसिक के अंदर ही दैट यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। ये आपकी स्क्रीन है, आपने करना क्या है, इस स्क्रीन पे इस तरह की एक इमेज ड्रॉ करनी है, ओके। एंड इसके टॉप पे एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू ड्रॉ। एक छोटी सी हट शेप में है, ठीक है। तो ये आपको यूजिंग लाइन कमांड्स आपके स्क्रीन पे ड्रॉ करनी है। तो लेट्स सी आपको कलर कोऑर्डिनेट्स और स्क्रीन मोड कितने अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट टाइम यू विल बी टेलिंग मी हाउ टू ड्रॉ दिस, ओके।